A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we've already discussed lots of the theoretical as well as the practical problems related to the chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio. In this chapter, firstly we discussed how we will find out the gaining and sacrificing ratio. Thereafter, we discussed the valuation of the goodwill by the different methods, and thereafter we discussed the accounting treatment of goodwill. And in the last video, we already discussed the accounting treatment of accumulated profit, losses, and general reserve, and there are basically two cases. The first case, when partners do not want to distribute the general reserve, accumulated profit, and losses, and number second, when partners decided do not want to distribute the general reserve, accumulated profit and losses. So now in this video, let's discuss about the accounting treatment of specific reserves. Accounting treatment of specific reserves. And you know very well what is the meaning of specific reserves. Already you know very well in your courses, according to the CBSE, any reserve which are created for the specific purpose, any reserves which are created for specific purpose will be known as specific reserves. And you know very well there are two types of the specific reserve which will be covered under your syllabus. The first will be your workman compensation reserve, and number second is investment fluctuation reserves. In short, workman compensation reserve will be known as an WCR and investment fluctuation reserve will be known as an IFR. So in today's video, firstly we revise the accounting treatment of workman compensation reserve, and thereafter we will discuss how we will record the investment fluctuation reserve at the time of changing PSR. Basically you know very well, अगर क्वेश्चन में सिंपली इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, so the WCR and investment fluctuation reserve will be distributed among all partners in their old ratio. But you know very well there is a certain specific obligation regarding the WCR and IFR. Why we created a workman compensation reserve? Workman compensation reserve is created for the purpose of प्रोवाइडिंग अ कंपनसेशन टू द वर्कमैन. यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि वर्कर्स को हम क्या दे सकें? कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकें. एंड व्हाई वी क्रिएट अ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? द ऑब्लिगेशन बियॉन्ड द पहला है केस 1. केस 1 क्या है? व्हेन there is no information about claim against workman compensation reserve WCR. मतलब जब क्वेश्चन में इस बात की इंफॉर्मेशन ना हो कि आपको कितना क्लेम देना है, तो उस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बस जब क्लेम ही नहीं है, सो ऑल द रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये केस 1 था. सर केस 2 भी होता है? व्हेन केस 2, when there is a claim against workman
कंपनसेशन रिजर्व, जब वहां कोई क्लेम हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पहले क्लेम को सेटिस्फाई करेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, फिर जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट विल बी द केस 2। सर केस 3 भी होता है, यस। केस 3 क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है कि जब क्लेम है लेकिन क्लेम बहुत ज्यादा है, मतलब क्लेम कितना हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी ज्यादा, व्हेन क्लेम इज हायर देन या ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उस सिचुएशन में बेसिकली आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है, क्लेम आपका ज्यादा है, सो क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको बियर करते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड पीएसएन, ओल्ड रेशियो। Is that clear? So there are basically 3 cases which are related to the workman compensation reserve. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझते हैं। जैसे सपोज ये बैलेंस शीट बना के दिया है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में there will be a workman compensation reserve of ₹50,000। केस 1 में, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें जोड़ देते हैं कि ए बी दो पार्टनर, उनका रेशियो है 1:1 और ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो जो है वो हो जाता है 2:1। तभी तो एक कहानी हो रही है कि रेशियो चेंज हो रहा है, जैसे ही रेशियो चेंज होगा तुरंत हम WCR को बांटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में तो उस WCR को कौन बांट लेगा, तो इंक्लूड हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, किस रेशियो में, कितना WCR है 50, किस रेशियो में, बराबर बराबर, ओल्ड रेशियो क्या है 25,000। जब कोई इंफॉर्मेशन ना, अब जब क्वेश्चन में कह दे कि कुछ क्लेम है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि क्लेम है आपका 30,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, क्लेम है 30,000, तो बचा कितना 20,000। तो 50,000 में से पहले आप 20,000 सेटिस्फाई करोगे, 30,000 दोगे एज अ क्लेम, फिर बचेगा कितना सर 20,000, उसको कौन लेगा, ए और बी, किस रेशियो में लेंगे, हाफ ऑफ, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या है इनके बीच का 1:2। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि सर WCR 50,000 है, लेकिन मान लो क्लेम, थर्ड सिचुएशन में जो आपकी क्लेम है वो ज्यादा। अब इस थर्ड सिचुएशन मान लो क्लेम हम रख देते हैं आपका 60,000, ये तो ज्यादा हो गया सर। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको पता है कि रिजर्व है 50,000 और क्लेम है आपका 60,000, तो 10,000 कौन बियर करेगा, ए और बी, किस रेशियो में बियर करेंगे भाई, ओल्ड रेशियो। 10,000 कम पड़ रहा था, 8,000 कितना है 5, यानी जो उनके बीच का रेशियो है 1:1, उस रेशियो में वो उस क्लेम को या डिफिसिट अमाउंट को बियर करेंगे। सो ये आज जो भी डिस्कस किया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। Investment fluctuation reserve is created for the purpose of adjusting the difference between the book value and the market value of the investment। उसको लेकर मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था कि सपोज अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट चल रही है 1 लाख रुपए, और आपने उसको बुक में अपने बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड किया 1,20,000, 1,50,000। So in this situation, investment fluctuation reserve which helps to adjust the differences between the book value and the market value of the investment. Okay, so this is a brief and short description about the specific reserves, that is in workman compensation and investment fluctuation reserve. So firstly we revised
and recapitulate the difference between recapitulate the accounting treatment of a specific reserve and a change of the PSR among existing partner. And firstly we revise the accounting treatment of workman compensation reserves, and there are lots of cases related to workman compensation reserve. So firstly we revise their examples जिसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है. एंड नाउ वी विल मूव टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ द चेंज इन पीएसआर. ओके, सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So let's we discuss the next topic of today's video, that is an accounting treatment of investment fluctuation reserve. As you know very well, this reserve is created, this reserves is created out of firm's profit to meet the fall in market value of investment, यानी कि ये जो रिजर्व है IFR, ये किस लिए क्रिएट होता है? फर्म्स की प्रॉफिट में, ताकि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल हो, कोई डिक्लाइनमेंट हो, तो उसको हम एडजस्ट कर सके. सो देयर आर बेसिकली फ्यू केसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द IFR. द केस नंबर 1, व्हेन book value of what? Investment. When book value and market value of investment is same, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वो सेम है, तो सिचुएशन में हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं. तो जो IFR हमारे पास अवेलेबल है उसे हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इन विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो. So this is the case 1. Okay, इसको हम बीच में बाउंड्री कर देते हैं, केस वाइज आप इसको स्टडी करेंगे. केस 2, केस 2 will be when book value and market value of investment is when book value and market value of investment is not same. दूसरा केस क्या होगा? जब बुक वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम ना हो, तो उसमें कई सिचुएशंस बनेंगी. केस 2 में पहली सिचुएशन है when fall in the value of investment, when fall in the value of investment is less than IFR. मतलब अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो रही 50,000 से, एंड यू हैव अ IFR रुपीज 1 lakh, it means you have a sufficient IFR to adjust the fall in the value of the investment. तो सिचुएशन में जो हमारे पास IFR है उसको हम पहले किससे एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट की फॉल वैल्यू से एडजस्ट करेंगे, और जो अगर पैसा बच जाएगा उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. यानी जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ना हो तो इसका मतलब है या तो वैल्यू फॉल करेगी या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी. तो केस 2 यही है कि जब फॉल वैल्यू सेम, जब फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द IFR, यानी IFR से कम हो. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? बी, केस 2 का बी, व्हेन
फॉल वैल्यू मतलब जो वैल्यू घट रही है ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR, जब IFR के बराबर, तो सिचुएशन में यू नो वेरी वेल IFR पूरा का पूरा किसको एडजस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट की फॉल वैल्यू को। एक भी रुपए पार्टनर्स के लिए रिमेनिंग नहीं रहेंगे। एंड द थर्ड सिचुएशन ऑफ द केस 2 व्हेन fall value is more than IFR, और जब आपका IFR की जो फॉल इन्वेस्टमेंट की जो फॉल वैल्यू है वो अवेलेबल IFR से ज्यादा है, तो सिचुएशन में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का फॉल वैल्यू ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, IFR की वैल्यू कम होगी, तो सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल्स को बियर करेंगे किस रेशियो में, वही ओ रेशियो, ठीक है। और ये क्या था, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट सेम, यानी हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन यानी इस केस 2 को नॉट सेम को हम और क्लियर कर सकते हैं कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो और बुक वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है, इसका मतलब है लॉस हो रहा है। वो लॉस कई तरीके से हो सकता है, या तो IFR से कम लॉस हो, या IFR के बराबर लॉस हो, या IFR से ज्यादा लॉस हो। ये केस 2 है। और केस 3 हम ये कह सकते हैं कि जब आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उससे भी ज्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू है, यानी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू से भी ज्यादा होगी तो इट इज अ सिंपल सिचुएशन, यू नो वेरी वेल। सिंपल सिचुएशन मींस कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को कौन रिटेन करेगा, द पार्टनर्स, यानी पहला तो IFR का तो आपने यूज ही नहीं किया, उसे पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ध्यान समझिएगा इस चीज को कि जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज्यादा है बुक वैल्यू से तो नो IFR विल बी यूज्ड, क्योंकि IFR कब यूज होता है, जब मार्केट वैल्यू कम हो और बुक वैल्यू ज्यादा हो, तो हमें इसका मतलब कब रियलाइज होगा, इसका मतलब हमारे लिए लॉस होता है। लेकिन जब मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है तो इसमें प्रॉफिट हो गया, यानी हमने IFR को यूज नहीं किया, और दूसरा जो प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, उसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, फिर बाद में रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ये सिंपल केसेस हैं which would be help at the time of the adjustment of the investment fluctuation reserve at the time of the change in PSR। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि सर थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। एग्जांपल के थ्रू कैसे डिस्कस करेंगे, केस वाइज। सपोज किसी क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना के गिवन है और बैलेंस शीट में दिया हुआ है IFR इन द लायबिलिटी साइड और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 1 लाख, 5 लाख और IFR की वैल्यू दी है 30,000 और कह रहा है कि देयर आर 2 पार्टनर P एंड Q, उनका रेशियो है 1:1 और ये ओल्ड रेशियो है और जो चेंज होकर 3:2 हो जाएगा न्यू रेशियो। और ड्यू टू दिस रीजन मतलब चेंज इन PSR के कारण IFR के कई केसेस गिवन हैं, जैसे पहला है केस 1 नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, और केस 2 कह रहा है
कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 5 लाख। तो ये केस 1 और केस 2 सेम है। जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी या क्वेश्चन में लिख देगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका 5 लाख है, यानी कि वही वैल्यू मार्केट वैल्यू है, वही वैल्यू बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। सो बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। तो केस 1 एंड केस 2, यानी अगर इसको पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर दें क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 एंड 2 के सिचुएशन में यही एंट्री पास होगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी टोटल आईएफआर डेबिट हो जाएगा और कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, पी एंड क्यू। टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल कितना, 15,000 15,000। समझ में आ गया। 1 + 2 मतलब चाहे 1 का सिचुएशन हो चाहे 2 का सिचुएशन, दोनों के सिचुएशन में यही एंट्री पास होगी। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो, क्या हो 4,88,000 हो जाए। अब यहां पर देखो, बुक वैल्यू इज 5 लाख, देयर इज अ मार्केट वैल्यू इज 4,88,000। तो उसका मतलब ये केस 2 में आ गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 5 लाख जबकि मार्केट वैल्यू 4,80,000। तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप लॉस रफली निकालें अपने से, तो 5 लाख से वैल्यू 4,88,000 हो जाएगी, तो लॉस कितना हो रहा है 12,000। तो ये इस सिचुएशन में आएगा कि आईएफआर आपके पास कितना था 30,000, उसमें से आपने लॉस कितना हुआ था 12,000, आपने एडजस्ट कर दिया, 18,000 बचा हुआ है। 18,000 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पी और क्यू। किस रेशियो में, बोल्ड रेशियो क्या है 1:1। सो 9,000 9,000। आई होप यू विल गेटिंग माय पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि जब when मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए 4,70,000। अब यहां देखो लॉस कितना हुआ 30,000 का। अब यहां पे देखो लॉस हुआ था 12,000 का, 18,000 बचा था, दैट्स व्हाई इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पी एंड क्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। बट इन दिस सिचुएशन द लॉस इज 30,000 एंड whereas the IFR is also 30,000। तो यहां पर पार्टनर्स के लिए कोई भी पैसा बचा नहीं। तो ये हो गया 1 एंड 2 का सॉल्यूशन, ये हो गया 3 का सॉल्यूशन, ये हो गया 4 का सॉल्यूशन। अब आते हैं फिफ्थ केस पे। फिफ्थ केस मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर फिफ्थ केस, हम फिफ्थ केस क्या लिखते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस। फिफ्थ केस ये हो सकता है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, when market value of investment कितना हो जाए is 4,20,000। अब आप देखो इस सिचुएशन में लॉस कितना होगा सर, इस सिचुएशन में तो लॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 लाख था, वैल्यू भी 420, तो 80,000 लॉस हो गया। अब इस 80,000 को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे जबकि हमारे पास आईएफआर कितना है 30,000 और लॉस कितना हो गया 50,000। सर ये सॉरी 80,000, कितना ज्यादा हो गया 50,000। तो ये 50,000 कौन बियर करेगा, पी और क्यू। किस रेशियो में, इक्वल। 50,000 का आधा कितना होता है 25,000 25,000। तो इट इज जस्ट डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस कि अगर लॉस ज्यादा हो रहा है तो पी एंड क्यू पार्टनर्स ही उसको बियर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज फिफ्थ केस, फिफ्थ का आंसर। और सिक्स को हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि मान लो ये है सिक्स्थ वाला कि मान लो व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए आपकी 5,20,000 हो जाए। अब तो भी आ गया कि जहां पे मार्केट वैल्यू क्या है बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो पहला तो ये हुआ कि आपने आईएफआर यूज ही नहीं किया, आईएफआर कितना था 30,000, या तो प्रॉफिट हो गया। तो ये पूरा पी और क्यू पहले बांट लेंगे इक्वली ओल्ड रेशियो में, और जो प्रॉफिट हुआ उसकी एक और एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट हुआ, रिवैल्यूएशन कितने का प्रॉफिट हुआ 20,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन 20,000।
And now this profit of the revaluation will also be distributed by P and Q in their old ratio, that is in 10,000 and 10,000. तो आप चाहें तो इस एंट्री को और इस एंट्री को दोनों को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं, IFR डेबिट 30,000, रीवैल्यूएशन डेबिट 20,000, टू P टू Q 25. So it is all about the accounting treatment of the specific reserve, that is an investment fluctuation reserve. And you can see that this reserve is created for the purpose of the adjustment of the difference between the market value and book value. और आप देखिए पूरा बोर्ड फिल हो गया है, and I hope you will get the point how we will adjust the investment fluctuation reserve at the time of the change in PSR. So let's revise it. Firstly, you can see that in the first situation कोई formation नहीं हो या फिर market value of the investment is equal to the book value of the investment. So situation में IFR will be distributed by old partner in their old ratio. Point 1. Point 2. When market value of the investment is less than the book value of the investment, तो यहाँ कंपेयर करोगे लॉस, यानी जो लॉस हो रहा है, यानी फॉल मार्केट वैल्यू में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी लॉस जो हो रहा है 12,000, वो IFR से कम, केस 2 में देख रहे हैं ना, लेस देन IFR. तो जितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओन रेशियो. सिमिलरली इफ फॉल वैल्यू इज इक्वल टू द IFR, जैसे यहाँ फॉल हुआ 30,000 रुपए का और IFR भी 30,000 है, so no one amount will be transferred to the partner's capital account, all the amount will be transferred to the investment account. And number third situation will be कि जब मार्केट वैल्यू में लॉस उससे भी ज्यादा हो जाए, यानी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो जाए कि IFR भी उसको कंपनसेट ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, सो सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड इन देयर ओल्ड रेशियो. एंड लास्ट विल बी जब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी अबव देन द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो जितना प्रॉफिट होगा उसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे. और जो IFR है वो, क्योंकि वो तो यूटिलाइज नहीं हुआ, वो यूटिलाइज कब होगा, वो यूटिलाइज होगा जब लॉस होता, लॉस तो हुआ नहीं, तो प्रॉफिट के सिचुएशन में IFR भी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा और जो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे वो भी मिल जाएगा. सो प्लीज नोट डाउन द होल कॉन्सेप्ट with the example in your copy properly, because it will helps to construct a modified approach while we solving the practical question of this chapter. So now in today's video you can see that how we will adjust the workman compensation reserve and investment fluctuation reserve at the time of change in PSR. And it is a very important topic for your examination point of view and for your further point of view, further questions point of view. And in this chapter we will move to the next topic. Before that we solve a lots of the practical question from this topic also, क्योंकि बुक में बहुत तरह के क्वेश्चंस इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड हैं, तो उनको भी सॉल्व करना जरूरी है. तो आई होप कि यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी इन ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सएप ग्रुप. बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल दीज स्पेसिफिक रिजर्व which is created for the specific purpose, workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. Workman compensation reserve में we have to compare the workman compensation reserve to their claim amount. If claim is equal to the workman compensation reserve, no amount will be provided to the partners. If compensation is less than the workman compensation reserve, so in this situation the balance amount will be provided to the partners in their own ratio. And when claim is greater than the workman compensation reserve, so in this situation the balance compensation will be provided by the partner in their old ratio.
Similarly, in the case of the IFR, you can see that if there is a no loss, so all the IFR will be transferred to the partner's capital. And if there is a loss, so we will see that the loss is equal to the IFR, above the IFR or below the IFR. If loss on the investment is equal to the IFR, no one amount will be provided to the partner. Is below to the IFR, so the balance amount will be provided to the partners in their own ratio. And if there is a excess loss on investment as compared to the IFR, in this situation the balance amount will be provided by the partners in their own ratio. So concept WCR and IFR का लगभग सेम है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. Okay. So in today's video, you can see that we discuss a lots of the topic very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, take care and goodbye. But please solve the practical portion of these chapters and these topics. Bye bye.